So today we're going to do the session 2, second session of our MCQs. And rule is you have to start with a smile, because in the last session you've seen, by the time we are nearing the end of it, your smile is already gone. Okay, so at least starting with, let that smile be. Yes? Okay, so let's have that smile going and we will start with our session. शुरू करें, 4 बज चुके हैं. Okay, so सबने chapter 2 पढ़ लिया, right? See, let me tell you, I can see all of you right here in front of me in my screen. So even if you don't unmute and answer, I can still see you. ठीक है, because I have to see you ना, तुम्हारा वो उल्टा ABCD भी तो पढ़ना पड़ता है ना? So for that I can see all of you. So if you're not responding, if you're not answering, तो मेरे को पता चल रहा है. And if the number of people out of you who know me, तुम ये भी जानते हो कि कितने दिन तुम आंसर नहीं दोगे तो मेरे को चलेगा नहीं चलेगा, है ना? So you have to keep answering, keep responding, and currently keep smiling. We'll start. Okay, start करें. सेकेंड चैप्टर मस्त पढ़ा है सबने एकदम अच्छे से. ये कौन सा, मतलब जरा सम हाँ लाइक दिस, एक ऐसे ना हाँ होता है, ये ना होता है, ये क्या होता है? इट्स लाइक मैम फ्रॉम आवर साइड वी हैव स्टार्टेड, बाकी अभी आप पूछोगे तो पता चल जाएगा हमको भी, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. ओके, सो the first thing, this is session 2, chapter 2, and number of questions that we're going to do is 14. Okay, so let's start with our first question. CK Limited was incorporated on 25th June 2018. CK Limited wants to make donations to a political party. It wants to know when can it make such donations to political party. Simple question. Okay, here are your options. After 1 year from its date of incorporation, after 2 years from date of its incorporation, after 3 years from date of its incorporation, or after 5 years from date of its incorporation. Okay, so I should get the answer C. Okay, C. All the answers that I'm getting currently are C. कोई अदर देन सी भी है क्या? ये जो आंसर नहीं दे रहे उनका नहीं चलते. हाँ, लेट मी टेल यू, मेरे को आंसर नहीं दिखाना तो इट इज कंसिडर्ड नहीं दिया. ठीक है, तो करेंटली संतोष का, मनाली का, हितल का, प्रवीणा का आंसर नहीं दिख रहा मेरे को. ओके, सी. मनाली, दिस इज योर फर्स्ट सेशन. सो ABCD के 4 ये होने चाहिए, समथिंग वेयर यू कैन शो. ओके, एवरीबडी सी. ओके, कूल. ठीक है, सबका आंसर सी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो देन तो फिर सी हैज टू बी आंसर ना, बिकॉज इफ यू नो political contribution कैन नॉट बी गिवन बाय 2 types of companies. One is this 3 years from incorporation and first is government company, right? सबको पता है ये बात? बताती तो अभी पता चल गई. Congratulations. Section 182 chapter 2. So here in our book it is clearly given यहाँ पे which companies, political contributions who cannot contribute, a government company and a company which has been in existence for less than 3 financial years. ठीक है? Now we go ahead to the next question and everybody please मेरी बात ध्यान से सुन लो. In case तुमको वो डाउट है कि यू नो हम इसके बारे में बात कब करेंगे, वो जो एग्जाम्स कैंसिल हो गए उसकी बात कब करेंगे, वो हम लास्ट में कर लेंगे आराम से. ओके, the certain phases are just like कि अरे but you know we need to know ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, right? But if you understand by conduct, I'm telling you ये करना है, because even if your exams have got cancelled, they've told you 25 दिन पहले बताएंगे. Just 25 days before exam they'll tell you you have your exams. If you stop studying right now, 25 days will not suffice, है ना? So don't let the momentum go. Keep studying. Obviously उसको कैसे थोड़ा सा you can be थोड़ा सा relaxed, but just don't shut your books like अभी है ही नहीं एग्जाम तो क्यों पढ़ूं. You lose your time, you lose everything that you remember, you'll start forgetting things. So please keep studying. ठीक है, इसीलिए हमारे सेशंस भी कंटिन्यू हो रहे हैं, राइट? ओके, वेरी गुड मीर. सो फॉर नाउ नेक्स्ट, oh this arrow is coming in between, कोई बात नहीं. Where at any time the number of interested directors, I am telling you, number of interested directors exceeds or is equal to dash of the total strength of the board, the quorum shall be number of not interested directors who are present at the meeting not being less than 2.
हेलो, बिकॉज नाउ इफ आई क्लोज दिस विंडो टू टेक ऑफ दिस एरो तो पूरा वो प्रॉब्लम आएगा. यू विल बी एबल टू सी द आंसर्स ऑल्सो. इसका भी आगे 4 के आंसर्स भी दिख जाएंगे तुमको. सो आई कैन डू दैट. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. Where at any time the number of interested directors exceeds or is equal to dash of the total number of total strength of board, the quorum shall be balance of disinterested directors, balance number of disinterested non-interested directors who are present at the meeting not being less than 2. तो you know there was an exceptional rule in quorum. ठीक है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है. ए डोंट गो बाय दैट एरो. ये एरो उसमें से आता है. ये एरो आंसर का नहीं है. ओके, बी 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 जो भी एरो के बी आंसर बोल रहे हैं, दिस इज रॉन्ग. बी 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 बी. ओके नेहा, नेहा योर आंसर. नेहा उनहलकर योर आंसर. ओके, सो सबका आंसर बी है. सबका आंसर बी है इसमें. यूनिटी स्ट्रेंथ ऑब्वियस आंसर इज बी ना, क्योंकि एक्सेप्शनल रूल तो बी वाला ही है ना. सो इफ योर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर 2/3 और मोर, देन योर बैलेंस डिसइंटरेस्टेड नॉट बीइंग लेस देन 2. ओके, सो यहाँ पे हमारा एक ये था कोरम का चार्ट बना हुआ है. इफ यू हैव स्टार्टेड विद मी, यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस चार्ट. इफ नॉट, यू कैन सी दैट चार्ट नाउ. देयर इज कोरम, जनरल रूल एंड एक्सेप्शनल रूल. दो रूल है. एक्सेप्शनल रूल इज व्हेन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर 2/3 और मोर, then balance disinterested being minimum 2. Is this okay? Make sense? Okay. Coming to question 3. In case of a company, by far सब एकदम easy चल रहा है ना, एकदम बहुत easy क्वेश्चन आ रहे हैं. Okay. In case of a company where minimum percent members in number are relative of promoters or are related parties, they are not precluded from voting on a resolution. So minimum dash percentage. What is the minimum percentage? This may the relatives of promoters or related parties, they are not precluded from voting on a resolution for approving any related party transaction. These are your options. $80, $85, $90, $95. None of the above आंसर नहीं है. Okay, C, C, C. Okay, lot of C's as your answers. C, 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 C. Hetal, your answer? Okay. Everybody's got C as your answer. सबके हिसाब से C. See, section 188 में there's a rule that normally you take shareholders approval when it exceeds the prescribed limits, but those related parties which are also shareholders, the shareholders who are also related parties, they do not vote at that resolution. But if the total number of shareholders, उसमें से 90% related party ही है, so I always tell class अगर वो भी नहीं vote करेंगे तो फिर कौन वोटेगा? So if it is 90%, then they are allowed to vote. So the answer is obviously C, 90%. Okay, it's like मैम ये था क्या कहीं सिलेबस में? Of course 188 का बहुत important part है ये. So section 188 over here, you in our book when you read, you will come across this exemption from rule of related party not to vote. This very important exemption is there. Everybody must have come across this. Over here, nothing contained in second proviso shall apply to a company in which 90% or more members in numbers are relative of promoters or are related. And as I told you this in advance, these MCQs are not made by me. These are made by ICAI. So this is a solid proof that ICAI कितना detail में जाके तुमसे MCQs पूछ रहा है. There will be certain sentences of a section, subsection, proviso that you never even came across, but they have an MCQ on it. Right? So should we go ahead? I hope you are marking your own score. As I told you, if you don't know a particular answer, you went wrong. Ensure you're writing that whole section number aside. यहाँ पे section number देने का reason यही है. You keep it aside so that next time you have to read the whole section again. You would know what you are falling short at. Okay. ठीक है? Cool. Next, moving ahead to the next question. Out of total strength of 6 directors of SQ Limited, 5 are attending a board meeting to consider the investment of funds of the company in another company.
The resolution relating to investment shall be taken as passed in which of the following cases? Here are your options. When all the 5 directors attending the meeting consent to it. B. When any 4 out of 5 consent to it. C. When any 3 out of 5 consent to it. Or D. Investment proposal must be consented to by the total strength of directors. That is 6 directors in this case. Oh, I'm loving to see those confused faces. आंसर लिखना स्टार्ट ही नहीं करा कोई. People are reading the question again and again and again. Okay. Oh, there are so many answers now. I can see A, B, C, D. Wow. एक ही बार में मेरे को चारों दिख गए. A, B, C, D तो आंसर हो गया. How can everything be the answer, यार? Okay, C, A, C, चलो मेजोरिटी तो पता चल रहा है. A, C, A, C, D. Okay, D. So there's D also. हो गए सबके आंसर्स? एकदम श्योर हो ना? You're very sure about your answer, right? So I can unmute any one of you and then ask you also कि ये कैसे आया आंसर, राइट? ओके, चल. आई एम श्योर यू हैव अ बैकग्राउंड टू इट ना. ऐसे थोड़ी तुम हवे में आंसर्स दे रहे हो मेरे को. इफ आई आस्क यू वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, यू विल बी एबल टू टेल मी द सेक्शन, द सबसेक्शन, द क्लॉज, द सेंटेंस एग्जैक्ट. Public like, ma'am, if you unmute us for this, we'll mute ourselves. Okay, so guys, एक second. बहुत simple है यार. If you read the question carefully, you will know what are they talking about. You easily, guys, mute. किसी का unmute हो गया, please mute करो. मैं करूँ नहीं तो. Okay, I guess सबका mute हो गया. Cool. So this is quite easy. Why? Because the question, the sentence is a bit here and there. Otherwise, you could have easily clicked it if I used the correct words. If you read this, one company wants to invest its funds into another company. When a company wants to invest its funds into another company, it's called intercorporate investment. Intercorporate investment section 186 में आता है. And 186 में intercorporate loan, investment, guarantee, security, everything requires unanimous resolution at board. And unanimous, I hope you understand, 100% होता है. So after telling you this, 2 options are of no use now, but 2 options are still there. So now your answer would be either A or D. Now think and tell me, A होना चाहिए D. I'm clearly telling you, law में लिखा है that you need a unanimous resolution to approve intercorporate investment. Okay, so now there are answers coming up. A. Okay, A. ठीक है. Okay. प्रियांशी, A. Okay. So A. सबका आंसर A. किसी का आंसर D नहीं अभी. Unanimous resolution तो unanimous होता है ना. Everybody should agree. But I hope you understand. Whenever we are passing a resolution, be it ordinary, be it special, be it unanimous, it is out of the people who are present and voting. So if there were some people who were present but absent from voting, तो उनको भी नहीं गिनते, right? So obviously the answer is all the 5 directors attending the meeting. So now everybody who did not give A as an answer from the start have gone wrong already. ठीक है? Probably you studied 186 very well, but the problem is कि when you come to interpret it, when you come to apply your knowledge, you're lacking something. ठीक है? So we are here just to find out कि what are we lacking at. खाली वो correct करना है. This okay? आगे बढ़े? Yeah, see, I told you the smiles. Now from this curve, we've come to straight face already. एक दो question और and it will be inverse. Okay, so let us understand where this is coming from. So section 186. Over here, यहाँ के ना requirements है 186 में. Intercorporate loan, investment, guarantee, security. There are 5 requirements.
approval of board, approval of shareholders, approval of PFI, no default in deposits, and of course rate of interest. So over here in the first approval of board, it is clearly given that you have to pass unanimous approval. Okay. Okay, I am hoping तुमको मस्त समझ गया because your expressions are like blank now. You have stopped giving expressions only. Okay, आगे बढ़ते हैं. Next question. In case of a board meeting which is conducted through the means of video conferencing, the draft minutes shall be circulated among all directors within dash days of the meeting, either in writing or in electronic mode as may be decided by board. So once your audiovisual conferencing wala board meeting is done, within how many days should the draft minutes be circulated? Okay, here are your options, and I am very sure तुम में से बहुत लोग खाली तुक्का मारने वाले, because you've never come across any such provision. You would be like, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी होता है, and all those smiles are telling me मैम हमारे साथ तो यही हुआ है. Okay, so the C. Mugda's answer is C. Keval's answer is C. Part C. Okay, C. Oh wow, Santosh is writing section number also बाजू में. Very good. C. Okay. प्रगति कुछ तो आंसर देना पड़ेगा ना. प्रगति, प्रियांशी, नेहा, कुछ तो A B C D कुछ भी अभी. C. Okay, प्रियांशी C. कुछ लोग ऐसा होता है जैसे अटकता ना, जैसे दे लाइक आई डोंट नो दिस आंसर. कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद. मैम 2 मिनट वो नेटवर्क एरर मैम. Only for 2 minutes. As soon as you start the next question, we'll be back. Okay, C. Ayushi is B. Okay. C. ठीक है. Okay. See, कुछ वीडियोस बंद होने लग गए. आंसर का टाइम आते ही वीडियो बंद हो जाता है. आंसर जाते ही वीडियो चालू हो जाता है. Very nice. Okay. I got all the answers. वैसे obviously, as soon as you have done a board meeting, उस board meeting के करने के 15 दिन में you have to circulate all the resolutions that you pass to all the directors, either in writing or in electronic mode. So the answer is C, 15 days. What I want to tell you is one very important tip from my side to you. Penalties and time limits are two things that students don't like at all and they don't remember. Right? एक penalty, एक time limit. And that is something that ICI knows. So अगर तुम इस बार की RTP जो May 21 की RTP थी उसको पढ़ोगे, you will realize majority MCQs are about time limits and penalties. So we know you're not going to study it. So that is the reason we are going to ask it. Yes, so be very particular about time limits and penalties. Yes. Start करें, आगे बढ़े. देखिए पहले समझ लेते where is this written, नाम कहाँ लिखा है. I'll tell you. Section 123 में ना ऐसे लिखा है that I'll tell you where exactly. Circulation of draft minutes. We have clearly written circulation of draft minutes among all the directors within 15 days of the meeting, either in writing or in electronic mode. Okay. Hello. Okay बोलो, मतलब ऐसे वाला okay बोलो, thumbs up वाला okay. हाँ okay. See, look at those smiles which are already gone. They're like, what is smile? We don't even know. So Nita, your video is off. You people have kept. हाँ, क्योंकि ये मेन बुक में लाया है. I'll show you. मेन बुक का स्क्रीनशॉट था, ये देखो. This is the main book. ठीक है. Okay. So now moving ahead. Coming to the next one, जिनके वीडियो बंद है, I'm trying to just send them a notification to start their videos. 1 ही मिनट, हाँ. और जिनके बीच भी चालू होते हैं वो तो बेस्ट है. Okay, now all the videos I can see are on. So let's go ahead talking about the next question. Audit committee may make omnibus approval for. The next 2 questions are going to be very nice. You're going to love them. Audit committee may make omnibus approval for first, making of investment in other company. B. Related party transaction proposed to be entered into by the company. C. Transferring of non-functional undertaking. And D. CPD wala. All of the above. And I told you this earlier also. CPD के हिसाब से नहीं चलेगा. अगर all of the above है तो वही आंसर है. Okay. This time people have studied well है. कल के देखते हुए आज पब्लिक के आंसर्स ज़्यादा करेक्ट हैं. Okay. B, C, B. कौन सा है भाई? B है. Okay. पब्लिक में क्या पता है, एक ही पेज पे ABCD लिखा है, मेरे को पूरा दिखा है. Whatever you like is your answer. Okay, B नहीं आती. B. Okay, B.
ठीक है, पार्थ बी. ओके, सो नाउ ऑल द आंसर्स आर बी. तो तुम्हारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू, आई एम जस्ट आस्किंग, अकॉर्डिंग टू यू, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी बाय ओमनिबस अप्रूवल. सी अंडरस्टैंड, अब बी आंसर है तो डी का ऑप्शन भी है. अकॉर्डिंग टू यू, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉन फंक्शनल अंडरटेकिंग कैन नॉट बी डन बाय ओमनिबस अप्रूवल. पब्लिक इज लाइक मैम अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो. People answers have changed. Now everybody is like मैम अभी थोड़ा convincing लग रहा है. When you would be writing your exams, I'll not be in front of you to convince you for the answer. And don't get convinced so easily. Answer B है. बस थोड़ा सा से पूछो. Are you sure? No. I'm ready to change. Okay, so the answer is B. यार खाली related party transactions का ही omnibus approval होता है. Yes. Okay. Where is it written? Of course, 177. Chapter 2. ये वापस समरी हो गया. Okay. Okay. So over here we have clearly given audit committee may make omnibus approval for related party transaction proposed to be entered into by the company subject to such conditions as may be prescribed. Yes. Yes. Okay. ये by the way किसी ने अगर टेक्स्ट बुक खोल रखी है तो वो बंद होनी चाहिए अभी. Just because अर्पित told me मैम मेरी बुक में ये नहीं है तो मैं कैसे क्लिक हुआ और डज इन बुक बाजू में खुली हुई है. हाँ करेक्ट, बट अभी एग्जाम में थोड़ी ना खोलना होता है. तो राइट नाउ योर बुक्स हैव टू बी क्लोज्ड ऑल ऑफ यू. अरे व्हाई? फॉर टू रीजंस यार. वन रीजन इज इफ यू, हाँ वो तो आंसर आने के बाद दिखा रहे हैं ना, पहले थोड़ी दिखा रहे हैं. ओके नाउ दिस इज फॉर एवरीबडी. इन केस एनी बुक इज ओपन बिसाइड यू, एंश्योर व्हेन यू आर आंसरिंग तब वो बंद होनी चाहिए. आई टेल यू व्हाई. नॉट बिकॉज तुमको इजीली आंसर मिल जाएगा, बिकॉज तुमको आंसर मिलेगा ही नहीं. बहुत रेयर चांसेस है तुमको आंसर इतना इजीली मिले, बिकॉज यू वुड आइदर गेट कंफ्यूज. बिकॉज नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 188, डू यू नो द अमाउंट ऑफ कंटेंट इन 188? तुम उसको पढ़ने बैठोगे तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है. यू विल गेट इनटू रीडिंग द होल थिंग अनलेस यू स्टडीड 188 दैट वे कि तुमको पता है ये कहाँ है. अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें आंसर भी पता होगा, है ना. तो एनी बुक दैट यू हैव बिसाइड्स यू, एंश्योर दैट इट इज व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड सॉल्विंग इट तब तक बंद होनी चाहिए. उसके बाद खोलो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट द रीजन ऑफ कीपिंग द स्क्रीनशॉट्स हियर इज सो दैट तुम्हें खोलने ना पड़े. Because I'm sure many of you must be having some other book also. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेन बुक भी होगी, समरी बुक भी होगी, पर उन्होंने पढ़ी नहीं होगी, है ना. सम जो कुछ चैप्टर्स मेन बुक से करते हैं, बाकी समरी बुक से ही कर लेते हैं. बिकॉज द नेम इज सो अट्रैक्टिव ना, समरी, है ना. तो जस्ट फॉर दैट वंस इन अ वाइल ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस मेन बुक ही सॉल्व होंगे. बट ऑब्वियसली दैट इज द रीजन ऑलवेज टेल कि पहले डिटेल कंटेंट पढ़ लो, समरी बुक से रिवीजन होता है. या okay, so now let's go ahead and do the next question. Which of the following points is not related to omnibus approval to be made by an audit committee? This 9% of you will not know. I'm telling you this well in advance. इसमें जिसका आंसर करेक्ट गया मेरे को उस पर डाउट आने वाला है. ठीक है, I'll tell you why, क्योंकि बहुत कम पब्लिक पढ़ी इसको. Which of the following points it is not related to omnibus approval to be made by an audit committee? A. Audit committee shall consider repetitiveness of the transactions. B. Indicative base price or current contracted price and the formula for variation in the price. C. Omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 2 financial years and shall require fresh approval after expiry of such financial years. D. Omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of the company. Okay, somebody said the answer is C. Kashish said C. Okay. बाकी सब कैसा है मैम? जिस एक जन दिया उसी के से चला लो, हमने कौन सा इसका आंसर देना है. Till you have not answered, your textbooks should not open. Okay. Okay. Arpit said A. Pragati said D. A, D और C तो आ चुका है. ओके, मिहिर सी, डी, ओके ओके, बी आ गया, ए बी सी डी चारों आ गए. वेरी नाइस, ब्रिलियंट. पब्लिक लाइक हम में से कोई तो करेक्ट जाएगा ही जाएगा. वी आर अ टीम.
ओके, आई सीन ऑल योर आंसर्स एंड स्पेशली दोस्त जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया, आई हैव सीन योर फेसेस बिकॉज यू डिड नॉट गिव एन आंसर. चलो अब आए आंसर्स. ठीक है. सो पहले डू यू नो ऑडिट कमिटी को ना ओमनिबस अप्रूवल देने के पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव टू कीप इन माइंड. ओके, उसकी एक लिस्ट है. इन दैट लिस्ट ये चारों आइटम है. द ओनली डिफरेंस इज अबाउट अ वर्ड हियर एंड देयर. ठीक है, आई विल टेल यू. बिफोर गिविंग ओमनिबस अप्रूवल, ऑडिट कमिटी इज सपोज्ड टू चेक द रिपीटेटिवनेस, द नेचर ऑफ रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन. Audit committee is also supposed to check the indicative base price or the current price and the variation. D वाला point, omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing of undertaking. In that is correct. उसका भी omnibus approval नहीं होगा. खाली जो point number C है ना, वहाँ पे लिखा है that omnibus approval once taken will be valid for 2 years. It is actually for 1 year. After 1 year फिर से approval होता है. Okay? Again. So the answer is C. Of course the answer is C. 1 year. Sorry, 1 year validity होता है. Section 177. Powers of board. यहाँ पे देखो ना, what are the items to be checked. So okay wait, हाँ ये देखो, if you see over here the markings that I've done, if you can just zoom. तुम सबके फोन में ना zoom कॉल पे zoom होता है. अगर तुम zoom पे zoom करोगे तो zoom हो जाएगा. Repetitiveness है यहाँ पे. ठीक है. Indicative base price, current contracted price है. Omnibus approval in respect of selling of disposing of undertaking है. बस यहाँ पे 1 financial year है, options में 2 financial year. Hello. People are like, sorry, हम अगले क्वेश्चन खेलेंगे. हेलो, आर यू देयर? या पब्लिक इज लाइक मैम, तुम खुश हो रहा तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हुआ अभी, तुम्हारे पास बहुत टाइम है प्रिपेयर करने के लिए. फिर सडनली स्टार्टेड फीलिंग मैम मेरे को कुछ नहीं आता. देखो कितना टाइम है. कल अपना जो लास्ट सेशन हुआ था उसका इंस्टीट्यूट को समझ आ गया था तुम्हारी प्रिपरेशन को टाइम चाहिए. सो इंस्टीट्यूट गिविंग यू टाइम स्टडी. बेटा आराम से पढ़ो. फर्स्ट चैप्टर में ये हाल है, बाकी तो कितना बचा, इसलिए दे गिविंग यू टाइम टू स्टडी. Hello, I am again telling you guys, this session is not to bring all the motivation that you have or all the confidence that you have. We are not trying to kill it. It is just that exam में जाके ये झटका लो, उससे अच्छा अभी ले लो. Yes, तुम में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको लगता है मैम मेरे को तो ना सेशन नहीं पता चलता, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, तो आप सेशन में नहीं आए पहले तो. Because you are not getting the idea of this. The idea of this is to prepare you for the exams. Yes. हाँ बोलो. हाँ ऐसे हाँ होता है, ऐसे ना होता है ना. आई एम लविंग टू सी दो स्माइल ऑन द फेसेस, जो कि मेरे को पता है सिर्फ मेरी बातों की वजह से आ रही है, वरना यू आर लविंग द क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एक्स, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, intimated of his participation in the meeting scheduled on August 2018. He declared his participation through electronic mode in April 2017. State whether Mr. X is entitled to participate in the meeting to be conducted in August 2018. तुमको समझा? मीटिंग अगस्त 18 में, उन्होंने अप्रैल 2017 में ही बता दिया था that I'll attend the mode meetings through audio video conference. ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस. Yes, intimation about such participation was made at the beginning of the calendar year. B, no, because intimation was made in previous calendar year. C, yes, because company was intimated of its participation in the meeting. D, no, because valid period of declaration, that is 1 year of his participation, is expired. Okay, so the answers have started coming. A B C D ध्यान से देख लेना, अल्फाबेट ध्यान से देना. Okay, so I see D, B, D. ये इजी वाला है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है. Come on, I need to see the answers. B, B. तुम में से कितने जन ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हो और ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं? मतलब घर पे बैठे भी ऑफिस का काम कर रहे हैं ऐसे वाले? हाउ मेनी फ्यू? ओके, 1. कीप योर हैंड्स अप प्लीज. जो लोग ऑफिस का काम कर रहे हो ये भी कर रहे हैं. 1, 2, 3. ओके, सो देयर आर 3 पीपल. तो बाकी सब बाजू में किसको देख रहे हो? बुक को? You know, I asked this question because of 2 people. Because वो ऐसे देख कहीं और ही रहे हैं. एंड उन 2 को छोड़ के बाकी 3 लोग हाथ उठाया था that we are working in office.
जिस पे भी ध्यान है थोड़ा यहाँ लगा लो यार, ठीक है. So coming back, first of all, if you know the rule, you have to intimate at the start of the calendar year. वो जो A वाला पॉइंट है ना, वो पॉइंट करेक्ट है बट इनकम्प्लीट. It has to be made at the start of the calendar year, but it will be valid only for 1 year. उसके बाद नहीं. So if you see, he has intimated in April 17. Agreed, start of the calendar year. Okay, but on the other hand, the problem is कि इसका 1 year खत्म हो चुका है. So that way, if you see, what is the answer? The answer is D. As I told you, most appropriate way to select. Yes. Okay. So no, because valid period of declaration, that is 1 year of his participation is expired. कहाँ लिखा है? Section 173. By the way, अर्पित मेन बुक है. अर्पित का सब मेन बुक है. ओके, ठीक है. डिक्लेरेशन. So over here यहाँ पे ना लिखा है, a director who desires to participate may intimate his intention of participation through the electronic mode at the beginning of the calendar year, and such declaration shall be valid for 1 year. Yes. Okay. Now, coming back to the next thing, Seafood Limited, incorporated on 1st April 2016. The company has conducted 4 board meetings during the financial year, 6th April, 28th August, 30th September. इसको time लगेगा. You will take some time to solve this. And 30th March. Decide validity of the frequency of board meeting. पहले I want you to read the question, analyze it, then I'll give you the options. Are you ready? See, I tell you one thing. If anyone has already started calculating gap between each of the 2 board meetings, तो ऐसे ना exam time पे you will waste your time. There are certain things that you can see by your eyes also कि तुम्हें पता चल जाएगा यार, तुम्हें पता ना gap कितने इसका होता है ना? पता, बोलो मत, पता ना? So by looking at it only, if you see April, May, June, July, August, that you should calculate. August and September को भी अगर कोई गिन रहा है, 20th August और 30th September के बीच में कितना गैप है, you don't need to ना. So just don't go calculating everything like a computer. Okay. So here are your options. There is no contravention of the provisions related to holding of board meeting, as 4 board meetings have been held during the year. Next, B. There is no contravention of the provision relating to holding of board meeting, as the first board meeting was held within 30 days of incorporation. C. There is a contravention. The font could be too small, but please zoom it. There is a contravention in respect of the conduct of board meeting, as gap between 2 consecutive board meetings, that is 6th April, 20th August, is 143 days, and gap between 2 meetings, which is 30th September, 30th March, is 181 days. And D. There is a contravention in respect of conduct of board meeting, as gap between 2 consecutive board meetings is 123 days, and between the other 2 meetings is 141 days. Okay, so I see C. आराम से calculate करो. C. Okay, too much of C. Okay. सबका आंसर C है. Nobody is other than C. Yogeshwari, what's your answer? Okay, so now that majority answers are C. C है ना सबका आंसर? जो तुम बोलो वो आंसर यार, come on, because if you calculate, you will understand इन दोनों के बीच में 143 days का गैप, इनके बीच में 181 days का गैप, which and as per the rule 120 days is maximum gap allowed, and these people are having a gap of 143 days and 181 days. So तो contravention होना ही था. Section 173 maximum gap between board meetings. So here subsequent board meeting का rule लिखा है minimum 4 every year and maximum gap not more than 120 days.
यस, ओके। अभी बबी का आंसर करेक्ट जाने लगा फिर से 2-3 सदी के बाद ये बैक। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी जस्ट हैव 5 मोर क्वेश्चंस लेफ्ट ना, अपने 9 हो चुके हैं आउट ऑफ 14। ओके, सो the board of directors of Verywell Limited wants to contribute 60,000 to a charitable organization during the financial year 17-18. During the financial year 15-16, the company suffered losses. Directors are contemplating to contribute the said amount in spite of the losses. Is this connection state whether the board of directors can contribute to charitable organization? So is this correct? In this connection, is it can they contribute? Here are your options. A. No. Verywell Limited cannot contribute 60,000 in 17-18 as this company suffered losses in 15-16. B. No. The board of directors is not authorized to contribute to bona fide charitable and other funds. C. No permission of company in general meetings shall be required for contribution to bona fide charitable and other funds. D. Yes, Verywell can contribute 60,000 to a charitable organization in spite of losses in 15-16 provided it's to a bona fide charitable fund. Okay, so now time for the answers. D. Okay, Asmita, your answer D. Keval, your answer. Akshata, Santosh D. D. Manali answer. Apurva answer. भाई सबको आंसर्स देने पड़ेंगे। ओके, बहुत सारे आंसर्स डी आ रहे हैं। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू यू, प्रॉफिट या लॉस हो, यू कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? लॉस मेकिंग कंपनीज कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। मतलब खुद का लॉस है और चैरिटी कर दो। रुको, मेरे क्वेश्चन का आंसर है तुम हाँ हाँ हम लॉस में भी चैरिटी कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? मतलब लीव दिस असाइड, दिस आई टॉक अबाउट दिस लेटर। मेरे को लॉस में चैरिटी कैसे करोगे? मतलब कैसे करोगे? मतलब लीगली इफ लाइक मैम ऐसा कोई रूल नहीं है दैट यू कैन नॉट मेक कंट्रीब्यूशन इन लॉसेस, राइट? बट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का लिमिट है शायद, विच इज 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। अगर पिछले 3 साल से लॉस है तो जहां तक मेरे को मैथ्स आती है, यू गाइस आर बेटर मैथ स्टूडेंट्स, हाँ। सो अकॉर्डिंग टू योर मैथ, यू टेल मी 3 years, प्रीसीडिंग 3 years में लॉस है, उसका 5% भी तो लॉस ही आएगा ना, नेगेटिव ही आएगा। दैट मच यू कैन कंट्रीब्यूट, मतलब हायर द लॉस हायर द कंट्रीब्यूशन। नहीं, यही तो मैंने बोला, इसको साइड में रख के पहले इसका आंसर दे दो मेरे को। ये 15-16 का लॉस आई नो, बट जस्ट बिकॉज समबडी, अभी जब मैंने आपसे पूछा इवन इफ द कंपनी इज इनटू लॉसेस कैन दे मेक चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, तो आंसर था यस, तुम में से मेजॉरिटी के हिसाब से। सो नाउ आई एम आस्किंग यू, अगर कंपनी इज इनटू कंटिन्यूअस लॉसेस तो वो कैसे करेगी? तो प्लीज हैव दिस समवेयर इन योर माइंड कि ऐसा नहीं है कि चैरिटी के लिए प्रॉफिट लॉस देखने। अगर प्रीसीडिंग 3 साल में लॉस होगा तो एवरेज 5% क्या आएगा? लॉस ही आएगा ना। हेलो, सो ये चीज ना जस्ट कीप इट समवेयर इन योर ब्रेन कि ऐसा भी हो सकता है दैट ड्यू टू लॉसेस यू नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। ओके, दिस इज लाइक अ नॉर्मल, अगेन समथिंग एक्स्ट्रा आई टोल्ड यू, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने ये सुना मैम चैरिटी के लिए प्रॉफिट लॉस नहीं देखना पड़ता। आई गेट दैट, बट व्हेन यू टू सी द लिमिट इज सीइंग द प्रॉफिट, सो अल्टीमेटली यू हैव टू सी द प्रॉफिट ना। Okay, now coming back to this question, in this question if you see they want to contribute during 17-18 and company का loss हुआ था 15-16 में। तो 17-18 से if you go back 16-17, 15-16, 14-15, 3 साल में से 1 साल में लॉस है, बाकी 2 के बारे में कुछ बोला नहीं है। So now it is not written that you should make profit in all the 3 years, right? लॉस होने के बाद अगेन आई एम टेलिंग यू, लॉस में कैन यू कंट्रीब्यूट? यस, बट इफ देयर इज लॉस फॉर कॉन्जिक्यूटिव 3 years देन यू विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज वो लिमिट में नहीं आएगा। इट इज नोवेयर रिटन दैट यू कैन, लॉस में कंट्रीब्यूशन होता है या नहीं ये नहीं लिखा है, बट ये लिखा है कि लिमिट इतना है करंटली, क्योंकि 3 में से 1 साल में लॉस है इसलिए चलेगा। सो ऑब्वियसली आंसर इज डी।
ऐसी गोइंग राइट इज नॉट द पॉइंट रे, लॉजिकली यू हैव टू गो राइट. यहाँ तो तुम्हें पता है ना, योर स्कोर ओनली यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ, आई एम नॉट कीपिंग, नोबडी एल्स इज कीपिंग. तो वो बस ये भी चेक कर लो कि मेरे को लॉजिक पता था इसका, अगर पता था तो सुबह, नहीं पता था तो यू नो इट ना. यस, ओके नेक्स्ट. सो 181 में है ये कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी. रूल तो बस इतना सा है कि लिमिट्स दी है, उस लिमिट से ज्यादा यू इफ यू वांट टू डू यू हैव टू आस्क शेयर होल्डर्स. उसके अंदर इफ यू वांट टू डू यू कैन डू इट बाय वोट. यस, ओके. Moving ahead, coming to question 31, Mayur Textiles Private Limited was incorporated on 23rd October. As per compliance requirement, company shall hold, ये कुछ अलग है यहाँ. Company shall hold its AGM within 9 months from the date of closure of a financial year and file financial statements with MCA within due date. What is the due date for holding a board meeting for approval of financial statements? Here are your options. हाँ करेक्ट, ए एंड बी आर सेम. तो वो 19 का 18 हो गया, कोई बात नहीं, तुम इसको 19 मान लेता है. सो this makes it 19 and everything else as you can see बाकी सब अलग अलग है. Okay, so Santosh says सीधा आंसर टू बी A. Okay. Guys, don't go back calculating. किसी का आंसर A आया तो कैसे आया, C आया तो कैसे आया. You find your answer first. Okay, Neha's answer is A, C. Okay, A. सबके आंसर A आ रहे हैं बहुत. प्लस C, A. Kaveri, your answer is C, right? Okay. A. ओके, सबका आंसर ए. अब कुछ जिसने अपना अब तक बनाया नहीं था, दे थॉट लेट्स गो विद द मेजॉरिटी, एवरीबॉडी सेइंग ए, लेट्स गो फॉर ए. तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया, नाउ वील रेज द बार फॉर ए. महालक्ष्मी, व्हाट्स योर आंसर? ए. देखा, सबका आंसर ए. चलो, अब जब मेजॉरिटी सबका आंसर ए है ही, नाउ टेल मी हाउ मेनी. समबडी सेड सी, राइट? कशिश का आंसर सी था शायद. किसका सी? ओके, कशिश का आंसर सी था. और किसी का आंसर सी है? ओके, कावेरी का आंसर सी है. और किसी का आंसर सी है? क्योंकि बाकी सब यही थे ना, इसलिए मैं बस वो ढूंढ रही हूँ जिनका सी है. आई टेल यू व्हाई वाज आई लुकिंग फॉर द आंसर सी, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज सी. तुम समझे ही नहीं. दिस इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल थिंग. रीड द क्वेश्चन अगेन गाइस. Okay, now I'm really curious to ask those two people कि तुम्हारा आंसर सी क्यों था. ठीक है, बिकॉज एवरीबडी स्टिल थिंकिंग. इनको आंसर पता चलने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी तक ये सोच रहे सी आया कैसे. सी, आई टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू थॉट यहाँ पे दे आर आस्किंग ड्यू डेट फॉर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन वाज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी ने अपना फर्स्ट एजीएम ड्यू डेट पे करना है. ओके, एंड फर्स्ट एजीएम की ड्यू डेट इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू, यू वुड हैव गॉट अ हार्ट अटैक, क्योंकि आईपीसीसी में पढ़ा था और मे बी इंटर में, राइट? क्योंकि एजीएम के ड्यू डेट्स तो थे. तो वो भी उन्होंने दे दिया क्वेश्चन में, दैट इट इज टू बी डन विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट? इफ यू सी दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23rd October 17, राइट? इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31st March 18, राइट? ठीक है, उससे 9 months इज 31st December 18, बराबर? नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, अपना दिमाग लगाना. नाउ थिंक लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नॉट लाइक स्टूडेंट.
स्टूडेंट के दिमाग से इसका आंसर आता ही नहीं है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिमाग से ही आया था आंसर. ठीक है, सुनो, इनको एजीएम करनी है 31 दिसंबर 2018. यू ऑल अग्री टू दिस, राइट? इफ यू अंडरस्टैंड, एजीएम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड अडॉप्ट होते हैं, राइट? दैट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर एजीएम. Yes. The question is, when should the board meeting be held for approval of financial statements? So your obvious answer will be, मैम वो तो GM से पहले भी करा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है. आधे रूल्स तो इनके वैसे ही ये लोग फ्री हैं प्राइवेट कंपनी होने के नाते. यस, ठीक है. इफ यू अंडरस्टैंड, ये तो शॉर्टर नोटिस पे उसी दिन भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं. हेलो, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक नहीं है. They could have called a board meeting on the same day by giving a short notice. उसी दिन board approval उसी दिन, and that is what normally happens with shareholders meeting with private companies. Private company की AGM भी एक ही दिन की होती है. See, that's the reason I said. इसका अगर तुम देखोगे ना, मैंने इसमें कोई सेक्शन 173 डाला है क्योंकि बोर्ड मीटिंग का क्वेश्चन है. अदरवाइज दिस इज नो सेक्शन. देख, मैं ये बोल रही हूँ, there is no section to this because this is a practical question. मैम प्लीज मेक अस सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हम तो वही कर रहे हैं, बट आई टेल यू वन थिंग गाइस, जस्ट बिकॉज पहले ये खत्म कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन एंड देन आई टेल. ठीक है, ओके? सो इसका कोई वो नहीं आएगा, कोई स्क्रीनशॉट, क्योंकि दिस इज नॉट कंटेंट ऑफ द बुक विच इज बीन आस्क्ड, इट इज एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज विच इज बीन आस्क्ड, एंड दीज आर द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चंस यू फाइंड इन योर एग्जाम. जो कि स्टूडेंट आगे बोलते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज जस्ट द बुक. But actually this is your syllabus. जितना knowledge उतना तेरा syllabus. Yes. ठीक है, so there's nothing over here. Next question आएगा, but उससे पहले, हाँ, somebody saying something. Yeah. अगर उसमें जल्दी डेट की ले सकते ना, तो एक लास्ट वाले क्वेश्चन में 31 दिसंबर लिया, वो लास्ट डेट ही तो पूछा है. That's the due date asking ना. That is the last to last कब तक करोगे? So that is the reason you give them the last date. बस प्राइवेट इसलिए तो सितंबर. दैट इज व्हाई ऑलवेज से, जैसे ही कंपनी का टाइप बदला, एवरीथिंग विल चेंज. कंपनी का टाइप चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस. बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. ओके, नाउ वन थिंग दैट आई हैड टू टेल यू बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, सी when you learn the content पूरा, तुमने अगर तुमने content, questions are so conceptual, that's why I wanted these questions. Okay, see one thing is obviously these are 100 only यार. या तुम चाहो तो इनके screenshots लो वगैरह कर लो, या ICI ने भी दे रखे, बट ICI ने एक गलती किया. ICI के बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग है, बहुत सारे, मतलब इतने सारे रॉन्ग है दैट when you sit to read like ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, बट ICI के साथ आंसर है. So then you have to sit and correct the answers, and you won't do that because you don't think you are in that position कि तुम ICI को करेक्ट करो, तो तुम नहीं करोगे. यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग यही करेक्ट आंसर है. तो जैसे ऐसे पीएम में गलती करता था, सजेस्टेड में करता है, ऐसे इसमें भी उनसे बहुत सारे, क्योंकि एमसीक्यू की लिस्ट लिखी है आंसर्स की, तो कर दिया है कुछ मस्ती. सो व्हाट वी आर डूइंग इज द करेक्ट वर्जन्स. ओके, क्योंकि अपने बुक में डालने के लिए वी हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग एंड करेक्ट द आंसर्स. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट वन थिंग दैट आई वुड टेल यू इज द मोर इफ यू स्टडीड द होल कंटेंट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फिर बस हो गया. 3 बार से ज्यादा कंटेंट वापस मत पढ़ो. अब प्रैक्टिस करो, ट्राई अप्लाइंग इट. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा श्योर हो जाओगे. 2 बार पढ़ लिया कंटेंट और तीसरी बार एग्जाम के टाइम पे तो पढ़ना ही है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा. संतोष, आपके पास बुक है, आप सब क्वेश्चन के पीडीएफ का क्या करोगे? आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है. अनलेस तुमको पीपीटी का लुक चाहिए तो बात अलग है, वरना आपके पास बुक आ गई. आपकी बुक पहुंच गई ना? हाँ, तो आपके पास जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसी में, तो यू विल इजीली फाइंड देम द करेक्टेड आंसर्स आल्सो. Okay, now so coming back, next question. Okay, next question, बड़ा question, आराम से पढ़ो. ABC, a private limited with 10 board of directors, was served notice of board meeting 7 days prior to the said meeting on their postal addresses. Mr. M is hospitalized due to severe illness. Mr. Y is going to London before board meeting. Mr. X and Mr. D went to Australia for some company business. Mr. A is busy with his daughter's marriage and unable to attend the meeting. Mr. E's mother is hospitalized, so he is busy taking care of his mother.
but he assures to attend the meeting via video conferencing. Mr. D and Mr. P were scheduled to arrive for the meeting at 2 p.m. on the same day. However, the flight got delayed by 8 hours. Mr. G and H are in town and available for the scheduled board meeting. Could the board meeting be held? पब्लिक इसको वापस पढ़ना पड़ेगा, ये सब बिजी लोग हैं, ठीक है, वापस पढ़ लो तुम. एंड हियर आर योर ऑप्शंस. ए, मीटिंग कैन बी हेल्ड इन द इवनिंग एंड डी एंड पी कैन ज्वाइन लेटर, मतलब जिनकी फ्लाइट 8 घंटे लेट हुई. बी, मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड बिकॉज कोरम इज इनकम्प्लीट. सी, कोरम इज कंप्लीट एंड डायरेक्टर्स कैन प्रोसीड विद द मीटिंग. एंड डी, मीटिंग इज कैंसल्ड. Okay, so the answers have started coming. C. 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 ओके, नियति ऐसा केवल आंसर देखा मैंने. रिया पता है आंसर दिख नहीं रहा मेरे को. बी, सी, सी, ए. ओके, प्रगति सोच के हो जाए तो आंसर भी देना. ओके, सी, सी, ए, सी. मेजॉरिटी आंसर्स ए, सी. चलो कुछ बी भी हैं. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू यू, चलो ठीक है, I've seen your answers. Tell me, टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 10, राइट. कोरम ऑफ अ बोर्ड मीटिंग इज हाउ मच? 1/3, राइट. 1/3 comes to 3.33, राउंडेड ऑफ टू 4, राइट. तो 4 लोग तो होने ही चाहिए फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग, बराबर. यहाँ द प्रॉब्लम इज पीपल आर रेडी टू अटेंड. ओके, दैट इज द लास्ट लाइन. मिस्टर डी एंड एच आर इन टाउन एंड अवेलेबल फॉर द शेड्यूल्ड बोर्ड मीटिंग. दे रेडी टू कम ऑन टाइम. ओके, अदर देन दैट और 2 लोग जो आने वाले थे which who were supposed to arrive at 2 p.m. they have got delayed by 8 hours. Okay, now could the board meeting be held? सी, बाकी तो सारे बाहर है, बाकी तो कोई नहीं आ रहा. एक इंसान ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहा है. नाउ आई डोंट नो वेदर यू नो दिस रूल और नो, बट कोरम कैन नॉट बी काउंटेड एज टोटल ऑफ पीपल अटेंडिंग थ्रू ऑडियो वीडियो एंड फिजिकल. फिजिकल का कोरम होएगा तो बाकी पब्लिक ऑडियो वीडियो से आ सकती है, और द होल मीटिंग शुड बी बाय ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इट कैन नॉट बी लाइक फिजिकल में 1 आया, ऑडियो वीडियो से 3 आए, काम हो गया. डजंट वर्क. ऑडियो वीडियो वाले को तो गिन के मतलब ही नहीं. फिजिकल 4 लोग चाहिए अपने को. 2 people are ready to come and 2 की फ्लाइट लेट हुई है, 8 घंटे लेट आएंगे. ऐसे नहीं होता दैट मीटिंग कैन बी हेल्ड इन इवनिंग एंड डायरेक्टर पी एन कैन जॉइन लेटर ऑन. व्हाट नॉट, मीटिंग है, मजाक है. नोटिस होता है, नोटिस में टाइम होता है. हेलो, सो ए कैन नॉट बी द आंसर. सी, कोरम इज कंप्लीट, डायरेक्टर्स कैन. हाउ इज इट कंप्लीट अनलेस आई हैव 4 people? नॉट पॉसिबल. डी, मीटिंग इज कैंसिल्ड. नॉनसेंस. आंसर इज सी, मतलब बी. मैंने ए बी सी डी से पढ़ा, बट आंसर इज बी. यस, because the quorum is not present. 2 people do not constitute quorum. Even 1 person attending through audio video conferencing will not be counted unless physical quorum is present. Had the whole meeting been happening through audio video conferencing, तो वो quorum होता. Yes. Okay. Okay. Last 2 questions यार. फिर समझ लेते. Section 174 board meeting. So यहाँ पे if you see quorum 1/3 तो चाहिए ना यार. 1/3 और 2, whichever is lower, which is higher. So 1/3 तो आनी चाहिए. 1/3 के हिसाब से 4 लोग तो आने चाहिए थे. Yes, okay. Coming to the next question. Rameshwaram Private Limited. Company was incorporated on 12th Jan. Company needs to pass a resolution for purchase of raw material. The copy of resolution along with necessary documents was circulated to all the directors. The company has 10 directors: Mr. Ram, Mr. Kamal, Mr. Raj, Mr. Firoz, Nupur, Bharat, Vinod, Rekha, Kapoor and Jeevan. Mr. Raj and Mr. Ram were abroad at the time of passing their resolution. Mr. Ram, Raj, Nupur, Kamal took objection before chairman against passing of the resolution and want to discuss it in the further meeting. Find out the correct statement. Section 175 resolution by circulation का question है. Here are your options. Since their solution is passed by a majority of the members, there is no need for further discussion on it as it was duly circulated to all the directors. B. अब B नीचे यहाँ थोड़ा कुछ typing error. Mr. Ram, Mr. Raj cannot raise any objection as they were out of India by passing the resolution.
C. Objection is sustainable as it is made by 1/3 of the members of the board and the meeting is held for further discussion. And D. Objection is sustainable as it is made by 2/3 of the members of board and the meeting is held for further discussion. Okay, so I see answers coming up. C, 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 C. Okay, C, C, C. सबके आंसर C. ऐसा कैसा यूनिटी, कोई तो अलग आए, सब C. ओके 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 ओके, अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ठीक है, ये लो आंसर सी. बिकॉज इफ रेजोल्यूशन में सर्कुलेशन का रूल है दैट इफ 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट टू द चेयरमैन देन इट विल बी डिस्कस्ड एट अ बोर्ड मीटिंग. और ये लोग हो गए, लोग 4 जन. यस ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. पहले ये समझ लो 175. Over here, if you see, provided that where minimum 1/3 of the total directors require that any resolution under circulation must be decided at a meeting, the chairperson shall put the resolution at a meeting. Okay. मैं तुम्हें लास्ट क्वेश्चन है इसलिए एक और बार लास्ट बार बता रही हूँ. इफ यू नॉट आंसरिंग देम यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम हियर. या तो तुम्हारे पास टाइम बहुत है और मे बी यू स्टडीड नथिंग. अगर तुम आंसर ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो क्या मतलब है ना. केबीसी थोड़ी चल रहा है जिसको देख लेंगे तो भी मजा आएगा. यू वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज इफ यू नॉट इवन ट्राइड ना, इवन इफ आई टेल यू द आंसर यू नॉट रिमेंबर. व्हेन यू ट्राइड एंड यू गो रॉन्ग यू रिमेंबर. पर तुम में से जो लोग आंसर ही नहीं दे रहे तुम लोग क्या कर रहे हो. सो एंश्योर यू गिविंग द आंसर्स, अदरवाइज एवरी वेस्ट हो रहा है सारा टाइम. Another big question, last one. Jupiter Shopping Mall Limited was incorporated on 3rd December 2016. As on 31st March 18, it had free reserves of 50 lakh and in securities premium, it showed a balance of 7.5 lakh. One of its director, Raha, has a leaning towards a particular political party in which his other family members are actively involved. Raha convinced the other 2 directors of the company, that is Promila and Rana, to contribute a sum of rupees 10 lakh to his political party. Accordingly, the board of directors held a meeting on 16 December and passed a resolution to contribute the decided amount. Advised the company as to how much amount can they contribute to a political party in financial year 18-19. Here are your options. A. can't find out कौन अनम्यूट है पर किसी की तो आवाज आ रही है. चलो anyways come. So A, company cannot contribute any amount to a political party in 1819. Company can contribute 2.5 lakh in 1819. Company can contribute 3.75 lakh in 1819. Company can contribute 5 lakh in 1819. Okay, so answers have started coming. A, 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 A. Akshita, you have to come closer to the camera for me to understand the correct answer. Okay. Okay, A. A. सबके आंसर्स A. Unity, strength. Now you understand. Obviously यार कोई लिमिट ही नहीं पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में करेंटली, बट लिमिट की बात यहाँ हो नहीं रही थी. इफ यू सी इसका इनकॉर्पोरेशन देखो 16 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 18-19 में इसको कॉन्ट्रीब्यूट लेना है तो 3 इयर्स तक तो कॉन्ट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकते. यस, क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट लिमिट, क्वेश्चन वाज अबाउट हाउ मच कैन दे कंट्रीब्यूट. इट लुक्स लाइक दे आस्किंग द लिमिट बट नॉट कंट्रीब्यूट ओनली. 3 साल कहाँ हुए इनकी, हैप्पी बर्थडे नहीं आई अभी, 3rd बर्थडे पे दिल कंट्रीब्यूट ना. यस. Okay, so the company cannot contribute any amount to a political party in 1819 because it was constituted in 1617 year. इस साल के बाद they'll be able to contribute. Okay, so section 182, same thing. We just studied this some time back. Who cannot contribute? A company which is in existence for less than 3 financial years. Yes. So this was your 14th question for the day. और कहाँ से आ रहा है ये सब तो तुमको पता ही है. It is coming from these books. ओके, नाउ बिफोर आई जस्ट वाइंड दिस अप, वो इम्पॉर्टेंट बात कि मैम एग्जाम्स कैंसिल हो गए करंटली, मतलब बीन पोस्टपोन फॉर अ फर्दर डेट. सो व्हाट डू वी डू?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ये तुम्हें समझा आज का सेशन भी. आई होप इट वॉज प्रोडक्टिव. लो रिएक्ट करो ना ऐसा. हाँ ऐसा ना, कुछ तो रिएक्शन देना पड़ता है ना. ओके, सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इवन दो दे पोस्टपोन द एग्जाम्स फॉर सम टाइम, तुम भी जानते हो लास्ट ईयर क्या हुआ था. ओके, दे डिड नॉट पोस्टपोन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर बाद में लेट जाके पोस्टपोन किया, फिर वो जो नियरेस्ट डेट थी वो भी नहीं हो पाया, फिर और पोस्टपोन, फिर जाके कैंसिल हो गया था. ठीक है, दिस टाइम व्हाट दे डिड वाज दे ट्राइड डूइंग इट वेल इन टाइम, क्योंकि इफ यू नो कॉस्ट अकाउंटेंट के एग्जाम कैंसिल हो गए थे. जैसे वो हुए थे तो यू नो द हायरार्की. ठीक है, सीबीएसई बोर्ड कैंसिल, सबके एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, तुम्हारा भी somehow it had to be delayed, but there is no date that we can give. तो इस चक्कर में what it is, currently we are not telling you any date, we tell you 25 days in advance. Okay, now you just tell me one thing, as a student what am I supposed to do right now ma'am? Am I supposed to close my books and keep them aside? No. तो क्या मैं उसी इंटेंसिटी से वापस पढ़ते रहूँ, तुम्हें को पता ही नहीं एग्जाम कब है तो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ. यार देखो, पहले तो ना डोंट मेक अ हाइप ऑफ थिंग्स फॉर योरसेल्फ. आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट द इंस्टीट्यूट, ये मैंने कभी नहीं किया. तो पिछले साल भी जब भी whenever I came, I never came to support the institute. All that I'm telling you is तुम अपने हिसाब से पढ़ते रहो such that you don't feel overburdened also, but you don't feel like you're losing it. कि यार पूरा you know people come back to me saying मैम वो मस्त ना हम लिंक में पढ़ रहे थे, पूरा लिंक ही छूट गया, वो बैठ ही नहीं रहा, अभी वैसे पढ़ाई नहीं होती. ये सब नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, because you'll end up wasting your time. Somebody else cannot control your mind guys. तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ में होना चाहिए. If you give that power somebody else, they're just going to misuse it. Trust me. मत बोलो कि इंस्टीट्यूट ने एग्जाम कैंसिल किया इसलिए मेरे से पढ़ाई नहीं हुई. तेरे से पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि तूने डिसाइड करते को नहीं पढ़ना. All that I'm telling is make it comfortable for yourself. Keep studying, do not leave it. But ठीक है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर सकते हो कि भाई हम पहले दिन में 10 घंटे पढ़ रहे थे, 16 घंटे पढ़ रहे थे, जो 16 पढ़ रहे थे वो चलो 12 घंटे पढ़ो. Complete your sleep and do those things. ओके, बट प्लीज डोंट लीव स्टडिंग बिकॉज सच में सब भूल जाओगे. तुम भी जानते हो यार, आज एक सब्जेक्ट पढ़ के 1 महीना हुआ है, वो सब्जेक्ट तुम भूल चुके हो, ऐसा तुम्हें लगा. यस, तो इफ यू कंप्लीटली लीव द ट्रैक ऑफ इट, खत्म हो जाएगा. मत करना ऐसा. दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर यू. एंड क्या होगा यार, 25 दिन पहले तुम समझो जुलाई तक हो जाएंगे एग्जाम्स. जुलाई तक तुम्हें लगता है जुलाई तक सब याद रहेगा अगर अभी यू स्टॉप स्टडिंग? नहीं. तो इट्स लाइक मैम अभी क्या करें, बिकॉज टायर्ड ऑफ स्टडिंग यार, क्या करें. देखो देयर वुड बी ऑलवेज सर्टेन थिंग्स जो तुमने सोचा था करने के लिए, बट मैम टाइम नहीं था इसलिए नहीं किया. हमेशा होता है, चाहे वो एक चैप्टर हो, चाहे वो कुछ प्रैक्टिस हो, चाहे वो कुछ भी होगा पक्का, दैट यू न्यू कि यार टाइम होता तो ये कर लेते. अब टाइम है, कर लो. आई टेल यू जेन्युइनली, लाइक दिस इज येस्टरडे इवनिंग दिस अनाउंसमेंट केम, एंड फ्रॉम येस्टरडे लाइक आई गेस रात से लेके आज दिन तक हमारे पास प्रैक्टिस मैनुअल के 20 ऑर्डर्स है. क्यों? क्योंकि पब्लिक ने पहले सोचा था अब टाइम नहीं है प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करने का, और अब उनके पास टाइम ही टाइम है. अब सडनली दे गॉट सो मच टाइम कि अभी, क्योंकि वो चीज वापस पढ़ना विल जस्ट गेट यू सैचुरेटेड. उससे चाहे कुछ नया पढ़ो विच विल स्टिल कीप यू इन टच विद दैट. तो सॉल्व मोर क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम क्वेश्चन, पेपर सॉल्व करो. जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता है सबसे वीक है, इसको तो यार मैंने एक ही बार पढ़ा था, एक और बार पढ़ो. कोई चैप्टर स्किप किया था उसको पढ़ो, तो यू स्टिल फील डूइंग समथिंग न्यू. तुम्हें ऐसा नहीं लगा वही तो पढ़ रहा हूँ यार बार बार. मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योरसेल्फ गाइस, क्योंकि यू इफ यू लीव इट यू लूज इट. बाद में इंस्टीट्यूट को तुम ब्लेम नहीं कर पाओगे. यार पिछले साल वालों ने क्या ब्लेम कर लिया. इफ यू नो पीपल हु वेटेड फॉर ऑल द टाइम टू गिव इन मे, उनके साथ तो जो हुआ था वो पोस्टपोन, फिर कैंसिल, फिर नवंबर में एग्जाम, और उसके बाद ऑप्ट आउट का रिजल्ट देखा. कैन दे ब्लेम एनीबॉडी? इट्स ओनली यू. इट्स योर फ्यूचर. बनेगा तो तुम्हारा, बिगड़ेगा तो तुम्हारा. When you become chartered accountant, you don't go and give credit to somebody else, right? तो ब्लेम किसी और को कैसे दे रहे हो? आई एम टेलिंग यू, आई अंडरस्टैंड कि मैं बोर हो जाएगा यार पढ़ते पढ़ते, तो कुछ नया पढ़, कुछ नए तरीके से पढ़, कोई और प्रैक्टिस की बुक पढ़, कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पढ़, सजेस्टेड पढ़, पुरानी आरटीपी पढ़, कुछ ऐसा पढ़ कि तुम्हारा प्रैक्टिस भी होता रहे एंड यू स्टिल इन टच विद द सब्जेक्ट. जस्ट डोंट लेट द मोमेंटम गो. ये मान के चलो कि मेरे एग्जाम है यार, ये फाइनल की एग्जाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, ऐसे कैसे छोड़ दोगे होप्स? And you understand the degree that you're getting is a big responsibility. ऐसे नहीं चलता. मतलब don't behave like school kids. कि नहीं मेरे हिसाब से एग्जाम में जवाब में नहीं पड़ेगा, मत पढ़. I hope you're understanding. This is your thing. ऐसे कैसे जाने दोगे यार? If somebody calls me up and says मैम अभी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो वो मत पढ़ो. जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ और पढ़ने का मन कर रहा हो वो पढ़ो. 8 सब्जेक्ट्स में से ही. Yes. प्रैक्टिस मोर गाइस, जस्ट बस प्रैक्टिस करते रहो. तुम्हारा भी लगता है मेरा सब पढ़ के हो गया मैम, अकाउंट्स के सम सॉल्व करो,
मतलब जो पढ़ लिए हैं वो ही करें, नहीं, पीएम कहीं ना कहीं से मिल जाएगी तुम्हें, ये तो सजेस्टेड उठा लो और ऐसे ही सॉल्व करते रहो, टाइमिंग वाइमिंग वगैरह मत करो, टेस्ट पेपर्स मत दो, सॉल्व करो फिर सजेस्टेड के आंसर से खुद को कंपेयर करो। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स का ऐसा आपको प्रैक्टिस मैनुअल टाइप कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां से सॉल्व करो। लॉ के लिए 750 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगे मैम मेरे पास बहुत टाइम है तो मुझे भी बताना, विल मेक इट 1050 देन। नहीं होगा, क्या होगा ना, यू विल फील लाइक स्टार्टिंग समथिंग न्यू। हर सब्जेक्ट में कुछ नया पढ़ो, बट पढ़ते रहना प्लीज। यस, ना दोज ऑफ यू मिस्ड एनी सेशन और एनी पार्ट ऑफ द सेशन एंड लाइक मैम यूट्यूब पे कब आएगा, मतलब फर्स्ट 5 सेशंस हो जाएंगे, फिर वो 5 सेशंस यूट्यूब पे आएंगे, क्योंकि हमारे 10 है ना, ठीक है। टिल देन तो इसलिए तुम लाइव अटेंड करते रहो, क्योंकि रोज रोज आया तो देन यू विल बी लाइक आराम से यूट्यूब पे देखेंगे ना, मेरे को तो तुम लोग नहीं देखोगे। सो आई होप टू सी यू सून डे आफ्टर टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन, चैप्टर 3, another 10 sections that 10 questions that we are going to solve, and till then keep the momentum going guys। हमको तो पढ़ना ही है ना, हमें तो सीए जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक पढ़ना ही है। अभी एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और से, इट्स ओके, ट्रस्ट मी। एंड प्लीज इफ यू फील मैम हमारे साथ तो क्या क्या हो रहा है, पिछले साल वालों से ज्यादा किसी के साथ नहीं हो रहा है, और उनको भी किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, ओ हो तुमने कितनी मेहनत की, कुछ नहीं की, तो खुद के लिए डिग्री लाई, तुम भी करोगे तो खुद के लिए डिग्री लाओगे, है ना। तो लेट कीप इट गोइंग यार, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, एंड खुद के लिए तो करना बनता है। ओके, तो डोंट लीव स्टाइंग, कुछ ना कुछ नया पढ़ो, कुछ अलग तरीके से पढ़ो, कोई और मतलब कुछ भी, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील इंटरेस्टिंग। स्टडीज हैव टू बी फेल्ट इंटरेस्टिंग। ओके कि चलो इतने टाइम से तो हम कुछ करें, वैसे भी देखो बाहर जाने के लिए तो कुछ है नहीं मोस्टली, इफ यू आर इनटू अ सिटी जहाँ पे कुछ भी सब खुला है तो प्लीज गो हेड, हमारे यहाँ तो सब बंद है। सो कहीं जा सकते हो तो थोड़ी देर घूमाओ, बट प्लीज कीप स्टार्टिंग, डू नॉट फॉरगेट कि डू नॉट कम बैक टू मी सेइंग कि मैम जब एग्जाम का डेट ही मालूम तो काय को पढ़ो, क्योंकि एग्जाम का डेट 25 दिन पहले पता चलेगा, इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू रिकलेक्ट द होल सीए फाइनल सिलेबस। एंड ऐसा तो है नहीं नवंबर दिसंबर जनवरी में पता नहीं कब भी होगा मैम एग्जाम, जुलाई तक होगा, 1-2 महीने एक्स्ट्रा मिले और रिवाइज करो। रिमेंबर यू नॉट हैव अ रीजन टू गिव कि मेरे पास टाइम नहीं था, तुम सारा टाइम किसी के पास नहीं है। यस, सो स्टडी गाइस, यू हैव टू मेक इट दिस टाइम यार। ये कोरोना इतनी इजीली जा नहीं रहा है, हर बार इसी झंझट में पढ़ो कि एग्जाम है कि नहीं है, उससे अच्छा देखे खत्म करो यार इसको, गिव इट योर बेस्टेस्ट, ट्राई एंड जस्ट फिनिश दिस ऑफ। लोग शादी करने जा रहे हैं, कोरोना ने उनकी शादी अटका दी, अभी तो तुम्हारे एग्जाम अटके पड़े हैं, जब ये हो जाएगा फिर तुम शादी का सोचोगे पता नहीं कौन अटका दे, तो वो सब भी तो करना है ना आगे। हेलो, तो ये करके खत्म करो, लेट्स डू समथिंग न्यू इन लाइफ यार। यस, ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, कीप स्टडिंग, स्टडी समथिंग न्यू बट कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय, आई विल सी यू एट 4 o'clock in the next session, I guess. Okay, see you soon, bye bye.